Hello everyone, this is Professor Sana Ansari from Team Professor MH. Friends, in this video, we are going to deeply discuss about the law of demand. Definitely, it's a very important question, and friends, in this video, we're going to cover each and every aspects which is related to the law of demand. So definitely, we'll have to go with the meaning part, we'll go with the definition part, definitely we'll do its schedule, which is table also called, and then we'll do about the diagram, and we will definitely discuss about the law of demand's assumption and also the exceptions. So now let's be ready for this video, friends. It's a full-fledged video in which I'm going to teach you about all the things which is related to the law of demand. So let's start here, and all the best. Now friends, first we'll deal with the meaning part. Now, so first of all, we need to learn about the part of demand. So demand is basically refers to the desire for a particular commodity, and along with you have to pay for it, you have ability to purchase it and willingness to pay for it. So this is what we call the demand. So demand, in a single word meaning, I can say that the demand is nothing but the desire and wants. But in a deep study, we can say that demand is nothing but the desire for a commodity where you are ready to pay for it, you have a willingness to pay for it, and you have a capability or ability to. So basically, let's start with a short example part, friends, and see, like if I want to purchase a Mercedes, I want to do travel, I want to go out for the chilling with my Mercedes car. So now basically what I'm supposed to do, I have to pay for it, right? So basically सिर्फ सपने देखना, it's not a demand. बट अगर आपने सोचा है यू वॉन्ट टू परचेज अ मर्सिडीज, सो उसके लिए आपका एबिलिटी प्लस यू शुड बी रेडी टू पे फॉर इट. सिर्फ उसको सोचना इज नॉट अ डिजायर. सी, इन अ डे वी थॉट अबाउट मेनी थिंग्स इन अवर डे, बट if you want to purchase some items and things, then you have to be prepared for it. Then only you can do a demand for that particular products, friends. So Mercedes खरीदना है, आप Mercedes में घूमना फिरना चाहते हैं, so Mercedes में घूमना फिरना चाहते हैं, it's your wish, it's your wants, but ये fulfill तभी होगा जब आपके अंदर एबिलिटी हो उतना अमाउंट पे करने के लिए, एंड विलिंगनेस भी होना चाहिए कि आप उसको पे करके खरीद सकें, तब जाके आपका डिमांड फुलफिल होता है, फ्रेंड्स. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव रिटन द मीनिंग पार्ट हियर. It represents a desire for a commodity backed by the ability and the willingness to purchase it. ठीक है? Again, मतलब desire means nothing but demand is nothing but the desire for a commodity where you have the ability to purchase it and you are ready to pay for it also. Okay? So two things matters the most, that is willingness and the ability. Then it is a measurable concept always with the reference to a price and the time period. Demand can be expressed as an individual's demand curve or demand for a product or market demand for a product. मतलब कि basically हम कैसे एक individual person के demand को भी measure कर सकते हैं, and market as a whole जो demand create होता है for a particular product के लिए, इसका भी हम जो है यहाँ पर analysis कर सकते हैं. Now then formula for that is डिमांड इज इक्वल्स टू एबिलिटी टू परचेज प्लस विलिंगनेस टू पे. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया है, फ्रेंड्स, कि डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होता है, एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू पे. मतलब मर्सिडीज खरीदने का एबिलिटी भी होना चाहिए और उतना पे करने के लिए आपने रेडी भी होना चाहिए, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कर सकते हो और उसको फुलफिल भी कर सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन, फ्रेंड्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेट अल्फ्रेड मार्शल, other things remains constant. Higher the price of a commodity, lower will be the quantity demanded. Lower the price of a commodity, higher will be the quantity demanded. It means, friends, that whenever you talk about the law of demand, now you need to be assume some things, and basically we'll have to go with the definition of the Professor Alfred Marshall, that is other things remains constant. मतलब apart from the price and the quantity, you need to assume all the things are same and all the things are constant. There is no changes
apart from the price and quantity in any other commodities. मतलब प्राइस एंड कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट का जो डिमांड हो रहा है, डिमांड और प्राइस में ही जो भी फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस होगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स है सो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. दिस इज व्हाट वी कॉल द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ceteris paribus. But also you can write here the other things remains constant. Now, higher the price of a commodity, lower the quantity demanded. जब भी आपके commodity का price बढ़ जाएगा, so automatically people will demand less. फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर मार्केट में जो वेजिटेबल्स है इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर उनका प्राइस बढ़ गया, सो बेसिकली आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे. एंड वाइस वर्सा, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड. और जैसे ही वेजिटेबल्स का प्राइस कम हो जाएगा वैसे ही आप उसका डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. सो बेसिकली दिस इज अ ह्यूमन नेचर कि जब भी आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप उसे ज्यादा खरीद लेते हैं, या कोई चीज महंगी होती है तो वहां पर आप उसका जो परचेज होता है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. कि डिमांड में सिर्फ दो ही रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं इन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. बट अपार्ट फ्रॉम द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब बाकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. जैसे कि देखिए एक कॉमन सी बात मैं आपको बताती हूँ कि समझिए अगर वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ गया सो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या कहा जाता है कि हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे. लेकिन सोचो अगर मैं रिच हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, सो प्राइस वेजिटेबल्स का कितना भी बढ़े, मुझे खाना है तो मैं वेजिटेबल्स खाऊंगी, है ना. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि माय इनकम विल रिमेन्स कांस्टेंट. अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि आपको सारी चीजें कांस्टेंट समझनी है, तभी लॉ ऑफ डिमांड का इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं. सो हियर वी नीड टू जस्ट अज्यूम दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ओनली द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ यहाँ पर मैंने एक पिक्चराइज किया है इस चीज को, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द शेड्यूल ऑफ दिस डिमांड. Then as I have told you that there is a only relationship between price and the quantity demanded. So as you can see on the screen, one column is there which is representing the price and one column is there which is representing the quantity demanded. See, price is rupees 1, 2, 3, 4, 5 and quantity demanded is 100, 90, 80, 70, 60. Let's observe this table, friends. See, when the price of a commodity is rupees 1, which is very less, the quantity demanded was 100. When the price increases from 1 to 2, the quantity demanded decreases from 100 to 90. And as it is, when the price increases from rupees 1 to rupees 5, the quantity demanded will decrease from 100 units to 60 units. There is an inverse relationship. This relationship is called as the inverse relationship, which is called the opposite relationship. Both the price and commodity demanded are representing a opposite relationship. कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, डिमांड अगर बढ़ रही है तो फिर प्राइस कम हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द डायग्राम हियर फ्रेंड्स. सी, बेसिकली in each and every diagrams we basically have two axes called y-axis and x-axis. So here we have a y-axis and this is our x-axis, friends. ठीक है. Now आप देख सकते हैं कि x-axis are representing quantity demanded. मतलब जो डिमांड हमने देखा वो कहाँ दिखाया जा रहा है, x-axis पे, और प्राइस दिखाया जा रहा है आपका y-axis पे. ना देखिए प्राइस जब P1 था, ज्यादा था, तो देखिए क्वांटिटी कम थी. जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस और डिक्रीज हुआ क्वांटिटी और डिक्रीज हो गई. सो दिस इज व्हाट वी कॉल व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग इन नेचर. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. देन this slope is a DD curve, DD slope, which is downward sloping from left to right, downward sloping from left to right, and this is a negative slope because it is showing the inverse relationship, friends. Okay, now let's move further. Hope you understand this diagram, schedules, meaning and the definition part, friends. Now let's start
Here with the diagrams explanation. In the diagram, the price is measured only on vertical axis and quantity is measured on the horizontal axis. मतलब कि x axis और y axis में price और quantity दिखाई जा रही है. The line DD, the demand curve slopes downward from left to right. DD is the line which is downward sloping from left to right. This is also called the demand curve and it shows the inverse relationship between price and quantity demanded. So this is what we call the full-fledged explanation of that particular diagram, friends. Now let's start with the assumptions. Now, see, the assumption is no change in consumers' income. So basically assumptions are nothing but you need to assume like कि आपको जो बोला गया ना other things remains constant. So कौन सी चीजें constant रहने वाली, assume करना मतलब आपको सोच कर चलना है कि ये सारी चीजें क्या रहेंगी, आपकी constant रहेंगी. There is only relationship which is in between of price and quantity demanded. So now let's start. No change in consumers' income. देखिए कंज्यूमर का इनकम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा आपको सोचकर चलना है. लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा सो बेसिकली कीमत कितनी भी बड़ी चीज हो कि आप उसका डिमांड करोगे. सो अगेन लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अगेंस्ट जा रहा है. व्हाई इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ? बिकॉज लॉ इज सेइंग that other things remains constant, which includes the consumer's incomes too. And here the consumer's income is not constant, friend. हमारी इनकम कभी भी constant नहीं होती है. अगर आज आप 50,000 कमा रहे हैं so कल को हो सकता है आपका इनकम बढ़ के 1 लाख हो जाए. So definitely there is a changes in the income of the consumer, but law of demand कहता है कि you need to assume that there is no change in the consumer's income. Then we have second assumption, friends. नो चेंजिंग प्राइस, नो चेंज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. मतलब जो भी रिलेटेड गुड्स होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी. नाउ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सो बेसिकली रिलेटेड गुड्स होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल ले लें. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक कमोडिटी को लेकर चल रहे हो, लेकिन अगर उसी कमोडिटी का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि टी का प्राइस बढ़ गया सो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इज लाइक दैट कि टी का प्राइस बढ़ गया चाय का सो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और चाय का प्राइस कम हो गया सो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. लेकिन इस केस में टी का सब्स्टिट्यूट यानी कि रिलेटेड गुड्स इज अवेलेबल. व्हाट इज द रिलेटेड गुड फॉर द टी? दैट इज द कॉफी. When the tea का demand will increase ना, people will switch on the coffee, and when the tea का demand decrease ना, so लोग आके टी को खरीद लेंगे. समझ में आया? So substitute available होते हैं तो भी आपका जो है चेंजेस आ जाता है डिमांड में. So ऐसा नहीं है कि हमको सोचकर चलना है कि चेंजेस नहीं होगी. There is a changes, okay? And then we have no change in taste. No change in taste. Basically taste refers to the food pattern, habits, okay? और जो कस्टमर की हैबिट्स होती है, फूड पैटर्न जो होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन टेस्ट. आपका स्टाइल, नेचर है ना, ये होता है. सो बेसिकली यहाँ पर जैसे जैसे लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होती है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी चेंज होते रहते हैं. बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आपको इसको कॉन्स्टेंट समझना है कि इसमें चेंजेस होगी नहीं, बट द फैक्ट इज दैट कि इसमें चेंजेस होगी. नाउ नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन एंड अनयूजुअल इवेंट आ सकता है. बेसिकली जैसे कि समझिए प्राइस अचानक से बढ़ सकता है, सो और भी ज्यादा डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकती है. बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, ऐसा सोचकर चलना है. नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स कंजम्पशन. बट बेसिकली देखिए 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें क्या था बेसिकली कि हमको पता था कि हमारा जो भी पॉपुलेशन है, लेकिन अब जो रिसेंटली हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बट लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन में कोई चेंजेस ही नहीं होगी. डेफिनेटली पॉपुलेशन में चेंजेस होगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन में चेंजेस होगी वैसे वैसे उनके कंजम्पशन में भी चेंजेस होगी. बट लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अज्यूम करके चलना है कि ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट. सिर्फ प्राइस और कमोडिटी जिसका डिमांड हो रहा है वही चेंज होगा. नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट. देयर इज चेंजेस इन एडवर्टीजमेंट. फ्रेंड्स देखो पहले बहुत अलग अलग चीजें होती थी. ओनली टेलीविजन पे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे चीजों को प्रमोट किया जाता था एडवर्टीजमेंट के द्वारा. लेकिन नाउ डेज वी हैव अ कलरफुल टीवी, वी हैव अ डिजिटल टीवीज, वी हैव अ LED स्क्रीन, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी हैव अ डिफरेंट मीडिया ऑल्सो.
प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करते हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बेचते हो। सो एडवर्टीजमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है फ्रेंड्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके डिमांड में चेंजेस होगी, और ये चेंज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। बट लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि आपको इसमें कोई चेंजेस होने वाली नहीं है। देन वी हैव नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी जो है टैक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा सकती है। तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देन नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स मतलब कभी भी अनसर्टेन एंड अनसर्टेन इवेंट्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ असम्पशंस ये है कि नेचुरल फैक्टर्स चेंज होगा ही नहीं। Okay friends, so exceptions definitely we'll do in the next lecture. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.